Asleep in the Valley. Arthur Rimbaud is the short name. And the Arthur Rimbaud is full name Jean Nicolas Arthur Rimbaud. Arthur Rimbaud born 20th October 1854. Arthur Rimbaud was a French poet from the 19th century. He started writing poetry. He started writing poetry even before he reached his teens. He reached his teenager. Teens means teenagers. He stopped writing poetry at the age of 19. Poetry at the age of 19. His major works include two music, evening prayer, the present poem, original the title Le Dormer Le Val was included in collection of poetry called a Poesis in the 1872. This poem is written in the model of the Italian sonnet. Italian sonnet in the description in the next video. The times in the sonnet description is the on side of the video. Very important part of students sonnet. Sonnet, that is the Italian sonnet, Petrarchan sonnet and Shakespeare sonnet. That has 14 lines. That has a 14 lines. ये कविता कितने लाइन की? 14 लाइन की. Divided as the octave and sestet. Octave and sestet. The explorer inherent the futility of war. This theme expressed in the contrasting image of the bountiful's nature as the background, and the tragic death of a young soldier in the midst of nature splendor. Sir, I start in this poem, very important poem, the Asleep in the Valley. Sleep in the valley, just like to somebody student ask me, sir, sleep in the valley. Who sleep? Just I think, just wait for the 5, 6, 10 minutes. And to your picture is a clearly who sleep in the valley. Okay, my dear. Just like to a small green valley. Ye small green valley. In this line is small green valley. स्मॉल ग्रीन वैली कहने का तात्पर्य एक छोटी सी घाटी. स्मॉल ग्रीन वैली माने एक छोटी हरी भरी घाटी. वेयर ए स्लो स्ट्रीम फ्लो, वहाँ एक छोटी सी नदी मंद गति से बह रही थी. कहाँ पर? उस घाटी में. यहाँ पोएट जो है नेचर ऑफ ब्यूटी को दर्शाया है. नेचर ऑफ ब्यूटी को दर्शाया. ए स्मॉल ग्रीन वैली मतलब एक छोटा सा हरी भरी घाटी. वेयर स्लो स्ट्रीम फ्लोस, और छोटी नदी बह रही है. उसमें क्या बह रही है सर? एक छोटी सी नदी जो है बह रही है. एंड लीव्स लॉन्ग स्ट्रेन्स ऑफ सिल्वर ऑन द ब्राइट. जब नदी छोटी सी घाटी में बह रही है, उसके जो फेना, जो फुआरा है, वह चांदी के समान चमक रहा है. द ग्रास फ्रॉम द माउंटेन टॉप स्ट्रीम द सन. Somebody student asked me, sir, in this stream, first stream in the small river, a second stream in, that means second stream means the झरना. यहाँ सेकेंड स्ट्रीम का अर्थ क्या है? झरना. वहाँ नदी है, यहाँ पर क्या है? झरना. स्ट्रीम मीन्स क्या होता है? झरना. ये सेकेंड में क्या? झरना के समान. द सन रेज माउंटेन टॉप्स, माउंटेन ऊंचे शिखरों से उस तरह से प्रकाश पड़ रहा है जैसे माउंटेन टॉप से झरना के समान चमक रहा है. द सन रेज. सन रेफर टू हियर इन द पोएट, सन रेफर टू एलमाइट गॉड. ये सन जो है बहुत शक्तिशाली है, इसीलिए सन के पास ऊर्जा शक्ति होती है, इसलिए सन को ही यहाँ प्रकाशित किया गया.
They feel, they refer to here. They refer to here the sun rays. They refer to here the sun rays. They feel the hall of full light. Halls. Halls means just like to somebody छिद्र छोटा सा बिल नहीं. द हॉल मीन्स वैली. ये सूर्य के प्रकाश से ये पूरे जो घाटी है, पूरे घाटी जो है सूर्य के प्रकाश से जगमगा रहा है. In these 4 lines, in the poet describe the beauty of nature. The poet describes the beauty of nature. इन 4 लाइनों में कवि जो है प्राकृतिक खूबसूरती का वर्णन किया है. प्राकृतिक खूबसूरती का वर्णन किया. और ये सोल्जर मैंने सैनिक. वेरी यंग कहने में बहुत कम उम्र का लड़का. ये सोल्जर वेरी यंग लाइज ओपन माउथेड. वह घाटी में लेटा हुआ है, मुंह उसका जो है खुला हुआ है. लेकिन कभी यहाँ पूर्ण रूप से ये नहीं कह सक रहा है कि वो लड़का मरा हुआ है या जिंदा है. लेकिन जो उसका मुंह खुला हुआ, ओपन, लेटा हुआ है और उसका मुंह जो है खुला हुआ है. ये पीलो मैड ऑफ फन. पीलो मीन्स होता है तकिया. मैड ऑफ फन माने फ्लावरलेस प्लांट जिसमें फूल नहीं होता. वह छोटी छोटी पौधा तकिए के समान लग रहा है. तकिए के समान. यहाँ जस्ट लाइक यहाँ पर क्या बताया है, नेचर जो है, प्राकृतिक नेचर जो है माँ की तरह काम कर रहा है. वो सब मरा हुआ सैनिक, वो सोया हुआ सैनिक के सर के नीचे तकिए के तरह छोटे छोटे फूल उसके सर नीचे रखा हुआ है. ये स्लीप में सो रहा है. स्ट्रेच in the heavy undergrowth मतलब bushes and plants, पौधा और झाड़ियाँ. हैवी मीन्स होता है बड़ा, लेकिन यह घना, थिक, यहाँ बहुत घना झाड़ियाँ पौधों का. वहाँ पर लड़का जो है लेटा हुआ, फैला उसका शरीर, लेटा सोया हुआ है, पैर को लंबा किया हुआ है, मुंह खुला हुआ है. ठीक है, उस झाड़ियों में सोया हुआ है. पेल इन इज वार्म, उसका चेहरा मुरझाया हुआ. उससे वार्म माने गर्म. ग्रीन सन सॉक बेड, वह जो ग्रीन, जो हरे घास है, वह उसे बिस्तर के तरह, सूर्य जो अपने प्रकाश से उसे गर्म कर रहा है. His feet among the flowers, उसके पैर उसको फूलों को टच कर रहा है. फूल पास में जो उसके पैर जो है फूलों को टच कर रहा है. He sleeps, वह सोया हुआ है. His smile, वह सोया हुआ. His smile is like an infant, वह उस तरह से मुस्कुरा रहा है जैसे छोटा बच्चा शिशु जैसे मुस्कुराता है, उसी के तरह वह मुस्कुरा रहा है. जेंटल बट विदाउट गिल, वह इनोसेंट है, किसी भी तरह का छल कपट नहीं जानता. छोटा बच्चा जो किसी तरह का छल नहीं जानता है, उसी तरह से सैनिक सोया हुआ स्थिति में किसी तरह का छल कपट को नहीं जानता. नेचर कीप हिम वार्म, प्रकृति उसे गर्म कर रहा है. प्रकृति उसका सब समर्थन कर रहा है. युद्ध व्यर्थ है, युद्ध बेकार है, लेकिन प्रकृति उसके कीप हिम वार्म, उसके बिस्तर को गर्म कर रहा है और ठंड को दूर कर रहा है. ही मे कैच कोल्ड, उसे कैच कोल्ड, ठंड को पड़ने ने ठंड को दूर कर रहा है. द हुमिंग इंसेक्ट डू नॉट डिस्टर्ब हिज रेस्ट. सर हम लोग 2 तरह से सोते हैं. एक स्लीप होता है, इटर्नल स्लीप होता है. स्लीप में क्या होता है, मच्छर काटता है तो उठते हैं, मक्खी काटता उठता है तो कोई डिस्टर्ब कर, वो डिस्टर्ब करता. हुमिंग डिस्टर्ब, छोटे छोटे, हुमिंग मैंने बुनबुनाना. इंसेक्ट में छोटे मोटे कीड़े मकोड़े क्या कर रहे हैं, वह सोया हुआ व्यक्ति को किसी भी तरह का डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, क्योंकि वह सोया हुआ व्यक्ति इटर्नल स्लीप में. वो सोया हुआ व्यक्ति किस में है, इटर्नल स्लीप में. इटर्नल स्लीप में वो कभी नहीं जाग सकता है, वो मृत अवस्था में है. इसीलिए कोई भी जंतु उसे किसी भी तरह का डिस्टर्ब नहीं करता. ये स्लीप इन द सनलाइट, वह सोया हुआ, उसके ऊपर सूर्य के प्रकाश पड़ रहा है. वन हैंड ऑन हिज ब्रेस्ट, एक हाथ उसके छाती पे है. एट पीस, वह शांत मुद्रा में सोया हुआ है. इन हिज साइड देयर आर 2 रेड होल्स, और कभी वहाँ पहुँच. द पोएट अराइव्ड इन द प्लेस, द पोएट पहुँचता है और देखता है क्या, उसके शरीर के बाद देयर आर 2 रेड होल्स, उसके शरीर में दाहिने तरफ 2 लाल लाल रंग के धब्बे. तब वो
पोएट समझता है ये लड़का जो है युद्ध में मारा गया है। थैंक यू माय डियर।